माता की respected president, respected chairman reception committee and विभाग प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, respected SSP madam, other senior office bearer of BMS RSS sitting on desk, respected Narayanan ji, I am remembering Krishna Kumar ji, N. Putti ji, N. Hari Kumar ji, but today we are not seeing him. Respected all the delegates came from various parts of Kerala, brothers and sisters. When our Secretary General was giving his speech, you have arranged one translator. He met me yesterday, but what I was seeing, I was very surprised. Our respected translator was waiting to get time for translate. But Anand Pal ji was fluently speaking in Hindi. And you people were also clapping. So many times you are. So then I reached on this conclusion that you all can easily Hindi. So there are no any need. The valuable services of my translator brother, we will give very short speech, mix in Hindi and English. Hand over that memento to Anand. There are two Sajji in Kerala. Two Sajji. One Sajji is my president, and second Sajji was president of BMS, All India president of BMS. That Sajji, Sajji Narayanan. This Sajji, Sajji Anand. Both are historical person. Why? I have not told the reason and you clever. Sajji Narayanan ji was and in present think tank of Central BMS, think tank of, and in present he is member of Paramars Datri committee. Every time when Central BMS need intellectual help, take card to Sajji Narayanan ji. And why your Sajji Anand is a historical person? Why we have taken name? When we got news that you are holding your circle conference in Kannur, then I asked person, why Kannur? Why not Kochi? Why not Trivandrum? Why not in Trichur? Their Guruvayur temple. Why Kannur you have selected? So Harsh told me that a Kannur 100% communist dominated area है, और केरला में जो 100% चीफ मिनिस्टर भी शायद यही कराने वाला है, 100% कम्युनिस्ट के डोमिनेटेड एरिया में सर्किल कॉन्फ्रेंस कराने का जो सज्जी आनंद ने निर्णय लिया, उसके लिए मैं उनको और ऐसे भी केरला के नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए केरला का जो निगेटिव एटमॉस्फेयर है, आप सब लोग उस माहौल में काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को डे बाय डे आप ऊपर ले जा रहे हैं। हम भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से बाय हार्ट हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, थैंक करते हैं।
दो तीन एक बार आनंदपाल जी का स्पीच कंप्लीट हो जाए, वंस आनंदपाल जी कंप्लीटेड हिज स्पीच, तो फिर कुछ बचता नहीं है, सारा टॉप टू बॉटम ही टोल्ड टू यू. 2 or 3 things you want to tell you. I was elected Secretary General in 2016, and you will be surprised. In that Federal Council, I was not present. Means a person who was not present in Federal Council elected as Secretary General. Second thing, I have started my leadership as Secretary General from Kerala. We have started my working from Kerala. You will be surprised how Santosh ji is saying he started his leadership as Secretary General from Kerala. 22nd May 2016, there was Federal Council in Hyderabad. After taking charge of that post, 23rd July 2016, I came to Trivandrum along with my all general secretaries of different unions. Narayananji, Rajesh, everybody was there. CM Pillai, today he is not here. I came to Trivandrum. What purpose? We have given one slogan, भारत यात्रा ऑफ बीपीएफ. We have started our भारत यात्रा from Trivandrum 23rd July 2016. Why we are quoting this line? That time I have appealed to all the circle secretaries. You start your state यात्रा. What you are thinking? आज एनएफपी का रिकॉग्निशन विड्रा हो गया. आप क्या समझते हैं? एनएफपी का रिकॉग्निशन विड्रा होने से वो सारा पोस्टल एम्प्लॉय भारतीय ज्वाइन करेगा? नहीं, आपको अप्रोच करना है. अदरवाइज आपके जस्ट बगल में एफएनपीओ का भी एक संगठन है जो भी केरला में बहुत वीक है, लेकिन वो सारा एनएफपी के लोग और सब एफएनपीओ में जाएगा. They will join एफएनपीओ. Why? There are permanent JCA with NFP and एफएनपीओ. They have permanent JCA. जब एनएफपी को लगेगा कि मेरा रिकॉग्निशन अब वापस नहीं आने वाला है, वो they will direct to their member to join एफएनपीओ. हमको क्या करना है? What should we do? हमको just now, after completing this circuit conference, after election of new office bearer, आपको केरल यात्रा प्रारंभ करना है. केरल यात्रा, सर्किल ऑफिस बेयर, पोस्टल क्लास 3, पोस्टल क्लास 4, पोस्टमैन यूनियन और जीडीएस, सारा ऑफिस बेयर को कितना, हाउ मेनी डिवीजन इन केरला? नियर अबाउट 24 कितना, हाउ मेनी डिवीजन? ओनली 24, 25, 26 डिवीजन आर इन केरला. We have completed my Bharat Yatra along with our general secretary. Very easy task. You can complete. So my humble request to all of you, एनएफपी का रिकॉग्निशन अब वापस आने वाला नहीं है. आपने सोचा था क्या एनएफपी जाएगा? और आपका जो सेंट्रल लीडरशिप है वो क्या क्या किया है, उन लोगों ने कैसे रिकॉग्निशन दिया है, आपको मालूम है? अभी वो आने वाला नहीं है. वो जितना प्रयास करेंगे, हम हर जगह उनको काउंटर कर रहे हैं और काउंटर करेंगे आपको. लेकिन एक डेंजर हमारे सामने है. व्हाट इज डेंजर? इन 2024 next verification will take place and
there are no any ban to join any person in verification. These person will change their name and will join. They will try to join with new nomenclature. ये डेंजर है, इसलिए अगला वेरिफिकेशन प्रारंभ हो। इस अधिवेशन के बाद केरल यात्रा चला करके उनके सारे मेंबर्स को अपने साथ इनरोल करना है। ये काम हमारा है। मुझे कहा गया जीडीएस का बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी मैं बड़ा नर्वस फील करता हूं। अभी इन प्रेजेंट मिस्टर महादेवैया, मिस्टर महादेवैया, एस महादेवैया, बिलोंग टू कर्नाटका। ही इज रिकॉग्नाइज्ड जनरल सेक्रेटरी ऑफ जीडीएस यूनियन। उस महादेवैया का क्या है हमारे सामने पड़ेगा तो बात नहीं कर सकता। ऑफिसर से क्या बात करेगा? वो आज तक कभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर को मिला नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को मिला नहीं। जीडीएस यूनियन नंबर 1। आज जीडीएस का एक कितना जीडीएस है जरा हाथ भाई, हाउ मेनी जीडीएस एम्प्लॉयज आर हियर? चलिए, जीडीएस का जो समस्या है आज की तारीख में, व्हाट इज बर्निंग इश्यू ऑफ जीडीएस? 3 प्रमोशन 12, 24, 36. Who will decide this issue? Directed Secretary DG? No. This issue is in the hands of government, finance ministry. Then what Mahadevaiya can do for you? What Mahadevaiya can do to solve this problem? In GDS, now GDS are coming with more than 90% in matriculation. More than 90%. Why they are with SS Mahadevaiya? What Mahadevaiya can do? 2 days back, one delegation led by your All India President Hiranmay Pandya ji met to Nirmala Sitharaman. You have perhaps, you can take photo. 2 days back, our delegation, BMS delegation, Mahadevaiya can meet to finance minister. They have not enough FLPO, including Mahadevaiya, have not yet 5 minutes for courtesy meeting with communication minister. Then how, why, what is the reason? I am unable to understand why the GDS in majority joined Mahadevaiya Union. This is only one reason, हम आप उनको कन्विंस नहीं करते हैं। हम what we are doing to give speech, to teach to every employee, this is duty of हर्ष का ड्यूटी है, अनंतपाल का ड्यूटी है। आप एक आदमी, हमारा एक कार्यकर्ता की रिस्पांसिबिलिटी है। वो संगठन जिनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है और दे आर लीडिंग टू एम्प्लॉइज, एक बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। 1 month back, there was Central Working Committee meeting of Bharatiya Gramin Dak Karmachari Sangh in Delhi. Your Secretary General had designed the GDS problem in 4P. We have given the name of all major demand 4P. 4P मतलब number 1, 12, 24, 36 promotion. Number 1 promotion. Number 2 medical facility means protection. तो number 1 promotion, number 2 protection, number 3 आज हमारा today our all GDS employees are working more than 4 hours, more than 5 hours. But due to rule 3A,
they are not getting paid up excess hours. They are working so many places. They are working more than 8 hours, but they are getting pay only for 4 hours or 5 hours. So this is prestige. This 3A, like Rule 370 in Kashmir. So we have demanded a 3 prestige. Rule 3A you remove, Rule 3A. और नंबर 4 पेंशन. कितना पेंशन? तो BPF have demanded RS 5,000 फिक्स अमाउंट प्लस DA. तो क्या डिमांड है? नंबर 1 प्रमोशन, नंबर 2 प्रोटेक्शन, नंबर 3 प्रेस्टीज, नंबर 4 पेंशन. 4 डिमांड. We have handed over this memorandum after CWC 38 office bearer of GDS. So many circle secretary was also there. We went to directorate, and perhaps you have seen that WhatsApp on with that picture on WhatsApp. Secretary, DG both were present in directorate. We have handed over our memorandum to DG and secretary. Not इतना, अश्वनी वैष्णव अपना कैबिनेट मिनिस्टर, उनको भी हमने एक 4P का बता दिया है. 2 days back, your All India President of GDS Union, Mr. Dinesh Rai, met to Law Minister in Delhi, Law Minister, and handed over this memorandum 4P to Law Minister. There are some role of Law Ministry also. In Rule 3A, there are one barrier from Law Ministry. So they have handed over this memorandum to Law Minister and requested, sir, kindly regarding 4P, kindly inform to Honorable Prime Minister. This time we are not giving any warning. One thing you note, we are supporting BJP only to this region because BJP is supporting to BMS. BJP is supporting to workers. So we are supporting to BJP. Otherwise, Bharatiya Mazdoor Sangh is 100% non-political organization. We are not affiliated to BJP. We are affiliated to Rashtriya Swayam Sevak Sangh. We are not BJP person. We are, Thengri ji openly said, what was the speech of पूजनीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी? जितनी मात्रा में जितना गवर्नमेंट का सहयोग मजदूर के लिए होगा, उतना सहयोग हम उस सरकार को करेंगे. सरकार किस पार्टी की है, We have no need. हमको सरकार कौन पार्टी की है ये हमको लेना देना नहीं है. और इसीलिए अभी आपके अनंतपाल जी ने आपको बताया 21 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, one rally for new pension scheme, remove NPS. Pension is the right of government employees. You cannot give out to us. तो 22 मई को पेंशन को लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन है. 21 मई को जीडीएस का 4P इसको लेकर के दिल्ली में रैली करने की योजना है. गवर्नमेंट को साफ साफ एकदम स्पष्ट बोलना है, मोदी जी हिमाचल में you have lost your election due to employees. You know the geographical situation of Himachal. There are more than 80% employees, government employees. Due to this NPS, कर्मचारियों ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया. कर्नाटका इस NPS के नाते कर्नाटका में बड़ी मेजॉरिटी में जो एम्प्लॉइज की वो सपोर्ट है वो भाजपा के अगेंस्ट गई. We have told to so many MPs
We have told to our state minister Dev Singh Chauhan, sir, अगर चुनाव में जाना है, you are going to face your election in May 24. GDS issue and new pension scheme should be decided. Otherwise, this will be harmful for the health of BJP. मैं नहीं कहता हूँ सरकार आएगी नहीं आएगी, लेकिन सरकार के आने के लिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. वी हैव कन्वे दिस मैसेज टू गवर्नमेंट. लास्ट पॉइंट, कोविड-19. जब कोविड पर प्रधानमंत्री ने बैन किया, लॉक 100% लॉक रहेगा. अपना मिनिस्टर उसमें कौन थे? मिस्टर रविशंकर प्रसाद वाज और मिनिस्टर. और एक आर्डर गया दिल्ली से, क्या? पोस्टल सर्विसेज इज वेरी एसेंशियल, सो ऑल द पोस्टल एंड आरएमएस ऑफिस शुड बी ओपन. आपने देखा था उसके बाद क्या हुआ? एक कम्युनिस्ट लोग एक क्या बोले, अरे लाइफ पर डेंजर है, रेलवे बंद है, सारा रोड परिवहन ट्रांसपोर्ट बंद है. What, how essential postal services is so much essential? No, बंद करो. That time I was Secretary General. I was admitted in Lucknow hospital after becoming positive by COVID. But we have given slogan, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय फेडरेशन के एक एक कर्मचारी को काम पर आना चाहिए. ये हमारा दुर्भाग्य है, ध्यान रखिएगा. व्हाट इज आवर स्लोगन? भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है. युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है. इन स्टार्टिंग you were speaking this slogan in Malayalam. जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम. ये मेरे अधिवेशन में केवल हम स्लोगन देते हैं कि बाई हार्ट वी आर स्पीकिंग, वी आर वर्कर ऑफ बीएमएस. That time I appeal to all the workers of भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय फेडरेशन. It is your bad luck. जब देश की लड़ाई चल रही थी डिपेंडेंस की, हम उस समय नहीं थे. ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश की आजादी में हमारा कोई रोल नहीं था. ये भी आजादी की लड़ाई है. कोविड-19 की वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कौन करेगा? Who will do this job? Only postal department can do. और आपने करके दिखा दिया. मेरा कहने का मतलब, कोविड-19 ने उसके नाते बहुत लोगों का डेथ हुआ, लेकिन कोविड ने कई लोगों को जिंदगी दे दिया, लाइफ दे दिया. उसमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. प्रधानमंत्री बोले कोविड में हमारा एक जीडीएस पोस्टमैन एआईपीएस के माध्यम से जब हम पैसा पहुंचा रहे थे, पूरे देश ने देखा. रोडें खाली थी, रोड पर उस समय कोई एक कर्मचारी अगर दिखाई पड़ा तो कौन था? इंडिया पोस्ट का कर्मचारी. आज क्या हाल है? रेलवे मोर देन 7 लाख पोस्ट आर वैकेंट. In BSNL, what is situation? We don't want to say. Everybody know. In ordinance, what is situation? 1st October 2022, ordinance department, defense department become private. पोस्टल का क्या हाल है? इसी महीने अगस्त में 31 अगस्त को आपका 100% पोस्ट पीएएसए का फिलअप हो गया. 100%. डिपार्टमेंट हैज कंप्लीटेड 4th साइकिल ऑफ जीडीएस रिक्रूटमेंट. 4th साइकिल. प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा एक पोस्टल डिपार्टमेंट का
मल्टी यूज है, मल्टी यूज। अगर पोस्टल की सर्विसेज कम होंगी, हम उनसे दूसरा काम लेंगे। अभी पॉपुलेशन की काउंटिंग होने जा रही है तो पूरा काम आपको मिलने जा रहा है। किस गांव में बिजली है, नहीं आती, कितने घर रहेंगे, सारा काम तो गवर्नमेंट का। अभी क्या ओपिनियन बना आफ्टर कोविड? The image of postal employees has been fully changed. गवर्नमेंट ने मान लिया कि आई हैव ओनली वन एजेंसी नेम्ड पोस्टल डिपार्टमेंट, जिसके कर्मचारी का मल्टी यूज है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक कम्युनिस्ट प्रचार करता है एक पोस्टल डिपार्टमेंट बंद होगा, ये होगा, कुछ बंद होने वाला नहीं है। जब तक के देश चलेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चलता रहेगा, कोई खतरा नहीं। अभी बहुत सारा विषय बोलने के लिए है, कई लोग और है, काफी समय भी हो गया। इतना ध्यान में रखिएगा, व्हाट वाज माय स्पीच इन योर लास्ट सर्किट कॉन्फ्रेंस, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अगर मेरे एक कार्यकर्ता को, ये ध्यान में रखिएगा, वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हमारा ऑर्डर त्रिवेंद्रम से नहीं होता है। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज इन दिल्ली। अगर हमारे एक कार्यकर्ता को केरल में किसी ने छेड़ा तो उसका क्या हाल करने वाले हैं, एक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हाई मनोबल बना करके चिंता मत करिए, एएनएफपी लौट करके आने वाला नहीं है। यू आर भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ एएनएफपी बीइंग नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन नेशनल फेडरेशन। भारतीय जो सेक्रेटरी जनरल 13 days back he left his house. You know, Anand Pal ji had only one daughter. He is taking his lesson in perhaps in higher matriculation. Yesterday night he was calling to his daughter, but she was not picking phone. Papa, how many days you will be outside from house? बंगाल बीरभूम में उनका पत्नी उनसे नाराज रहता है हमेशा, उनका बेटी उनसे नाराज रहता है। क्या है? सेक्रेटरी जनरल है, जनरल सेक्रेटरी है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, पोस्टमैन जनरल सेक्रेटरी है, घर से निकलना है। हम बहुत सिंपल परिवार से आते हैं, कि कम फ्रॉम वेरी सिंपल फैमिली। ड्यू टू दिस बैनर, ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, पूरा देश में हम जाते हैं, कर्मचारी हमको रिस्पेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ड्यू टू दिस बैनर वो मंत्री बुलाता है, फ्रीक्वेंटली वी आर टेकिंग, आप व्हाट्सएप पर देखते होंगे, फ्रीक्वेंटली वी आर टेकिंग मीटिंग विद मिनिस्टर। व्हाई? ड्यू टू दिस बैनर। फिर क्या करना है? जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम। जब तक शरीर स्वस्थ है, जितना बल पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने जीवन की कीमत चुकाएंगे। एक अपील है, वेट मत करिए। एनएफपी को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? एनएफपी तो कैसे खत्म हुआ मालूम है? धेनी जी ने कहा, तपस्या चाहे राम करे चाहे रावण। तपस्या जानते हैं ना? तपस्या चाहे राम करे चाहे रावण, उसको उसका फल मिलता है। एनएफपी के लिए माध्यम बन गए अनिल पाल जी, माध्यम बन गया भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय फेडरेशन। वास्तव में उनका पुण्य खत्म हो गया, अब उनकी रिकॉग्निशन जाना ही था। इंडिया केरल से बाहर, इस केरल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाहर दैवभूम, होम ऑफ गॉड। इस गॉड के होम को, अरे कम्युनिस्ट भाइयों, तुम भी आदमी हो, तुम दूसरे क्लास से नहीं आए हो। तुमने गॉड की लैंड को क्या बना दिया, इसकी समीक्षा करोगे। आदमी हो कि जानवर बन गए हो, समीक्षा करो। गॉड की
लैंड को आज कहां ला करके तुमने खड़ा किया है। पूरे देश में केरला स्टोरी पिक्चर आई, एक एक आदमी पूरा परिवार के सहित बैठ करके केरला स्टोरी देख रहा है। इतना सुंदर नेचर ने अपना 100% डोनेट कर दिया केरला को। कल हम घूम रहे थे, कितना सुंदर क्लाइमेट, कितना सुंदर लेक, फॉरेस्ट, कितना गॉड ने जिस स्टेट को अपना सब कुछ दे दिया, उसको एक नकली कम्युनिस्ट इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। इसलिए एक एक कार्यकर्ता ये ध्यान रखिएगा, और मैं हर चीज से व्यक्ति करूंगा। आपके और सब लोग, मनोज हैं, राजेश हैं, मेरी अपील रहेगी, एक ऐसी टीम बनाइए, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। अगर किसी डिवीजन के अंदर मेरे किसी एक कार्यकर्ता पर इनका अटैक होता है, विद इन 10 to 12 आवर्स अपने सारे लोग वहां पहुंच जाएं और वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू करें। ऐसा एक बहुत शार्ट टाइम में अपने किसी कार्यकर्ता पर कोई अटैक होता पहले होगा नहीं। अगर पोस्टर का कोई कर्मचारी, कोई एनएफपी कहो, एफएनपीओ कहो, अगर अटैक करेगा उसको रहने नहीं देंगे विभाग में, ध्यान रखिएगा। बाहर का आदमी अटैक करता है, उसके लिए आप सारे लोग बहुत शार्ट नोटिस में एक स्थान पर आकर के अपने आदमी को प्रोटेक्शन देंगे। आप यूनाइट रहेंगे। केरला में इतना गैदरिंग, एक गैदरिंग आप जो बोलते हो कि हम केरला है, ये नॉर्थ इंडिया जैसी गैदरिंग है। इतना ही डेलीगेट नॉर्थ इंडिया में हमारी सर्किट कॉन्फ्रेंस में आता है। आप इतनी अच्छी गैदरिंग, कितना बढ़िया प्लेस। हम लखनऊ में इतना पैसा खर्च करके इतनी ग्लैमरस कॉन्फ्रेंस नहीं कराते, पैसा नहीं, इतना बढ़िया व्यवस्था। केरला पीछे नहीं है। हम केरला में टीचिंग करने नहीं आते हैं, लर्निंग करने आते हैं। हम आपसे सीख करके जाते हैं बहुत सब कुछ। आपकी यूनिटी, आपका व्यवस्था किस तरह से माइक पर चल रहा है, प्रोजेक्टर, एक बहुत कम स्टेट में ऐसा कोई सोच सकता है। तो मैं अपने भाई सज्जी जी को, हर्ष को, राजेश, पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से दोहराते हैं, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, दिल्ली के अंदर केरला का सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है। आपका एक लेटर जाता है, आपका एक लेटर जाता है, तुरंत अगले दिन उस पर करस्पॉन्डेंस होती है। दिल्ली से त्रिवेंद्रम और केरल की दूरी थोड़ा ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं श्योर करके जाता हूं आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय फेडरेशन पूरी टीम के साथ 24 आवर्स आपके साथ खड़ा रहेगा। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। താങ്ക് യു സർ. അടുത്തത് ആശംസകളാണ്. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ആദ്യമായി മിസ്റ്റർ മഹേഷ് കെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഭാരതീയ മസ്ദൂർ സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.